स्टूडेंट्स वेलकम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में हम नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है देखो बेटा, you remember standard reduction potential, standard cell potential, it is calculated when concentration of electrolyte is 1 moles per liter and temperature is 298 Kelvin. Beta, in some cases concentration is different from 1 moles per liter and temperature is different from 298 Kelvin, or one condition is not followed. That means one of them is not this one. In that case, the standard term removes out. It remains only reduction potential and cell potential. And these two terms can be calculated by using Nernst equation. So you got my point? If we are taking concentration this much and temperature is this much, we calculate standard reduction potential and cell potential. And if one of the condition is different or both are different, we need Nernst equation to calculate the actual value of reduction potential and actual value of cell potential. What is Nernst equation? We need to giving you just the value term. E is equal to E naught. What is E? The reduction potential or the cell potential when concentration or temperature are different. Got it? It is E naught. It is the same value which was determined when concentration was 1 moles per liter and temperature was 298 Kelvin temperature. Minus this is the factor which we need to subtract from E naught value. So what is this factor? 2.303 RT upon NF. R is gas constant, T is temperature, F Faraday constant, and number of moles of electron we have just calculated in the last part, right? Log base 10 concentration of product उधर लिखनी है बेटा, and denominator में हमें concentration of reactant लिखना है. इस केस में what is R बेटा? gas constant value is 8.314 joule per Kelvin per mole. Temperature is, we know temperature is 298 Kelvin. Generally cell is kept at room temperature, but if temperature is different, we need to take that different temperature. At our level of class 12, temperature will always be 298 Kelvin. Faraday will always be constant. It is 96500 coulomb per mole. बच्चों, F, T and R, all these values if we keep here and finally multiply and divide them, what the actual value of Nernst equation what we receive. So the final Nernst equation is E is equal to E naught minus 0.059 upon N log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant. So what you got बच्चों? If R is this, temperature is this, Faraday's value is this, we keep these three values in this equation and we get 0.059. Why we are not keeping the value of N? बेटा इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन डिफरेंट हो जाते हैं. हर एक इक्वेशन में हमें n की वैल्यू हर बार अलग निकालनी पड़ेगी. कैसे? लास्ट पार्ट में हमने सीखा था बेटा कि n कैसे निकालते हैं. ऑक्स हाफ इक्वेशन लिखेंगे, रेड हाफ इक्वेशन लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्स हाफ एंड गेन्ड इन रेड हाफ को हम बैलेंस करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, वही हमारा n होगा. अभी हम इसको सीखेंगे. फिर अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इस नर्स्ट इक्वेशन को फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल. व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल? देखो बच्चों, इफ हाफ सेल का मीन क्या होता है बेटे? अगर हमारी इक्वेशन केवल या तो ऑक्स हाफ हुई या रेड हाफ हुई. लेट्स से हमने यहां पर रेड हाफ इक्वेशन ली. m I don't know which metal but it is a metal representation. n positive some charge, it gains an electron and change into m solid. You got the point or not? This is reactant, this is product. देखो बच्चों, This is what our Nernst equation. So हमने E के नीचे क्या लिख दिया? वही बेटा जिसका हमें निकालना है. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेटल जिंक होता हम जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते. अगर ये कॉपर होता तो ये कॉपर लिखते, और अगर ये प्लैटिनम होता, अगर ये हमारा सिल्वर होता तो हम सिल्वर के लिख देते. You got the point? is equal to E naught, इसी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n. बेटा ये जो n है वही हमें यहाँ पर रखना है. एंड लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट m सॉलिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट m n पॉजिटिव. देखो बच्चों, सॉलिड की कंसंट्रेशन हम सब जानते हैं बेटा, क्लास 11th में 1 होती है, हमने पहले से रखा है. द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन 1. Got it? So ये m solid हम यहाँ पर रखें, उसके बाद हम 1 रख दें या फिर हम इसको डायरेक्टली ही 1 रख दें, हमारा बात बराबर ही रहेगा. But concentration of iron will always be mentioned to you in the question. आपको वो रखनी होगी. Concentration of iron
जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमें यहाँ पर रखना होगा। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमें हमेशा 1 रखनी होगी। अगर हम गैल्वेनिक सेल ले लें, हम उस सेल के लिए यहाँ पर निकालना चाहें तो सबसे पहले हमें गैल्वेनिक सेल, हमने यहाँ पर लिख लिया है सेल को, आप देखें ध्यान से, जो सेल हमने यहाँ पर लिखा है उसमें Zn over Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर डैनियल सेल है, ऑक्स हाफ दिखाई दे रहा होगा 0 से 2 पॉजिटिव हमेशा हम रखते हैं। तो Zn minus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn 2 पॉजिटिव, रिडक्शन कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, बेटा दिखाई दे गया होगा, ऑक्सीडेशन हाफ साफ दिख रहा है, रिडक्शन हाफ साफ दिख रहा है, बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2 गेन्ड 2, ये दोनों बैलेंस हो गए और उसका बेनिफिट हमें क्या पता चला, n is equal to हमारा क्या आ गया बेटा 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट n फॉर कीपिंग इन द रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन दोनों को ऐड करके हमारी इक्वेशन क्या बनती है बेटा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कट गए, रिएक्टेंट साइड में जिंक और कॉपर आयन बचे, प्रोडक्ट साइड में जिंक आयन और कॉपर बचे, यही आ गया। अब देखो क्वेश्चन में जिंक सॉलिड है बेटा, कंसंट्रेशन सब जानते हैं 1 होगी, बट Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या दे रहा है 0.0501, हमने यहां पे 0.01 m लिख दिया, गॉट इट और नॉट। अब बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लो 0.001 m दिया होगा, क्या बेनिफिट बेटा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.01, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.001। और बेटा फिर से हमारा ये आप देखेंगे तो ये सॉलिड इसकी कंसंट्रेशन हमेशा हमें 1 लेना होगा। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे अपना नस्ट इक्वेशन। व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, E सेल, सेल क्यों लिया सर, बेटा पूरा सेल है, हाफ सेल नहीं है, वहां पर हमें आयन की वैल्यू लिखनी थी, यहां पर हमें पूरा सेल लिखना है। माइनस इज इक्वल टू E नॉट सेल, ये कैसे निकालेंगे, डोंट यू नो, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, इन दोनों की वैल्यू हमें दिया हुआ होगा, उसको हम कैलकुलेट अलग से करके निकाल लेंगे। माइनस 0.059 अपॉन n, यहां पर n हमको समझ में आ गया होगा, हमें 2 रखना है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रखेंगे बेटा, केवल जिंक आयन। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, मेरे को कॉपर सॉलिड रखने की जरूरत नहीं, मैंने अभी भी बताया था, मैं यहां पर m सॉलिड रखकर फिर से 1 रखूंगा, मैं पहले ही इसको ना लिखूं 1 लिख दूं, बात बराबर ही है। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सी लिखनी है बेटा, ओनली कॉपर आयन नीड टू बी रिटन, बिकॉज़ जिंक सॉलिड है, हम रखेंगे तभी हमें इसकी वैल्यू 1 ही पुट करना पड़ेगा, आप रखें ना रखें फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर हम n की जगह जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर n की जगह 2 आ जाएगा, जिंक आयन कंसंट्रेशन 0.01 एंड कॉपर आयन कंसंट्रेशन 0.001 आ जाएगी। अब इसके ऊपर बेस हमें नस्ट इक्वेशन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। कैलकुलेट EMF फॉर द सेल एट 298, मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द केसेस में टेंपरेचर 298 केसी ही होगा, 298 केल्विन ही होगा, लेकिन अगर कभी चेंज हो गया तो आप समझ गए होंगे यहां पर टेंपरेचर वैल्यू चेंज होते ही 0.05 कांस्टेंट अलग हो जाएगा। फिलहाल अब हम आने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पर। आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव, आई होप आप समझ गए ऑक्सीडेशन है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, आप समझ गए रिएक्शन है। अब हम क्या करें बेटा, पहले हम ऑक्स हाफ इक्वेशन लिखेंगे। सी व्हाट इज ऑक्स हाफ इक्वेशन बेटा, ऑक्स हाफ इक्वेशन होगा Fe minus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe2 पॉजिटिव। रेड हाफ इक्वेशन क्या होगा बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। हमको साफ दिखाई दे रहा है 0 से 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 पॉजिटिव से 0 2 पॉजिटिव खत्म होने का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। इसको ऐड करके आपको रिडक्शन हाफ ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ को ऐड करने के बाद आपको पता चल गया कि n हमारा क्या आ गया बेटा 2, एंड इक्वेशन क्या बन गई बेटा Fe प्लस Cu2 पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे ये दोनों हमारे यहां पर कैंसिल आउट हो गए हैं। प्रोडक्ट क्या बचा Fe2 पॉजिटिव एंड कॉपर बच गया, कोई डाउट तो नहीं रहा। हमारी इक्वेशन में हमें कॉपर और आयरन यहाँ पर प्लस में मिल गए हैं। अब हम इसमें निकालेंगे बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड कौन बना रहा है आप जानते हैं, A B C में पहले A आता है एनोड, उसके बाद B, उसके बाद C मींस कैथोड बाद में। तो कॉपर कैथोड बना रहा है, इसका रिडक्शन वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, आपने कैथोड की जगह 0.34 लिख दिया, गॉट इट और नॉट बेटा। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन कॉपर वाला, एनोड कौन आयरन वाला। आप जानते हैं A B C में पहले A फिर C, तो पहले एनोड फिर कैथोड। कॉपर कैथोड बना रहा है, इसकी रिडक्शन वैल्यू 0.34 है, वो हमने यहां पर लिख दिया। एनोड की वैल्यू किसकी लिखेंगे बेटा,
आयरन का वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा -0.44, तो ये फॉर्मूला का माइनस आया बेटे और ये हमारी वैल्यू का माइनस है। आंसर बेटा क्या आएगा वो आपको दिख गया होगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 0.78 वोल्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। व्हाट इज दिस? हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब हम इसके बेस पर अपनी नर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं बेटा। नर्स्ट इक्वेशन क्या है आपको दिख रही होगी बोर्ड पर। Nernst equation is E is equal to E naught minus this upon N is equal to this। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log base 10। प्रोडक्ट क्या है बेटा? आयरन 2 प्लस एंड कॉपर, बट कॉपर क्या है मेरे बच्चों? सॉलिड, कंसंट्रेशन 1। हम कॉपर सॉलिड नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा ऊपर केवल आयरन 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आयरन है, कॉपर 2 प्लस है। हम आयरन को नहीं लिखेंगे बिकॉज़ सॉलिड है, किसको लिखेंगे? केवल कॉपर 2 पॉजिटिव को। अब हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे बेटा। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आई थी अगर आप ध्यान से देखें? 0.78 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 N 2 आया था log base 10। प्रोडक्ट क्या लिखना है? Fe2 प्लस और कंसंट्रेशन Fe2 प्लस की बेटा आप देखें 0.01 और रिएक्टेंट की 0.01। तो आयरन 2 प्लस की जगह कंसंट्रेशन देखिए 0.01 एंड कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.001। गॉट इट और नॉट? इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये आ गया 0.78 माइनस 0. इसको आप कट कर दीजिए 0.295 लॉग, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा 10 आ जाएगा। 0.01 कैंसिल आउट करिए, लॉग 10 रह गया। अब बेटा हमारा फाइनल आंसर 0.78 माइनस 0.0295 into 1 बिकॉज लॉग 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर ये निकल कर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में आगे चलते हैं।